ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں حاجی آصف مظفر صاحب سے درخواست کروں گا تلاوت قرآن پاک۔ بھائی جان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ جی آج گجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ہم محترم کمشنر گجرانوالہ نوید حیدر شرازی صاحب کو اور محترم ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ جناب نوید احمد صاحب کو گجرانوالہ چیمبر آف کامرس میں تشریف لانے پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ہماری ٹیم کمشنر صاحب کی سربراہی میں، ڈی سی صاحب کی سربراہی میں گجرانوالہ میں کام کر رہی ہے، یہ کسی بھی شہر کے لیے، وہاں کے لوگوں کے لیے، وہاں کی بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جب ان جیسے افسران جو ہیں وہ کسی جگہ پہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں۔ پچھلے کئی دہائیوں سے گجرانوالہ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی جتنی ماشاءاللہ ان کے شارٹ ٹائم میں وہ یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہو، وہ ایکسپریس ہائی وے ہو، وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو، وہ اور کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی آ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی پروجیکٹ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں۔ اور ڈی سی صاحب کی کارشوں کو تو ہم جو ہے وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو یہ سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی جو ماشاءاللہ محنت طلب دوسری صاحب جو ہیں وہ میری ہوش میں تو پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ اللہ پاک ان کی زندگی کو سلامت رکھے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کمشنر صاحب بھی، ڈی سی صاحب بھی، ہم لوگ بھی جتنی آسانیاں بانٹ سکتے ہیں اس سوسائٹی میں بانٹیں، جتنی لوگوں کو عزت دے سکتے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ اللہ پاک نے جن سیٹوں پہ ہمیں بٹھایا ہوا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنے، خیر کا باعث بنے، عزت کا باعث بنے۔ باقی معاملات تو دنیا کے جو ویسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے لیے جب بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے الحمدللہ ہمیں پازیٹیو جواب آیا ہے۔ ابھی ہمارا جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، ابھی میں نے کمشنر صاحب کو وزٹ کرایا ہے، ڈی سی صاحب کو وزٹ کرایا ہے، اپنا فیسیلیٹیشن سارا فلور جو بھی ہم نے نیا بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے کاؤنٹر وہ ان پروسیس ہے۔ منسٹری آف فارن افیئر کا موفا کا کاؤنٹر جو ہے وہ ان پروسیس ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے لیے یہاں پہ ہم جو ہے اس کو بھی لے آؤں۔ ڈرائی بورڈ کے لیے ڈی سی صاحب کے ساتھ اور کمشنر صاحب کے ساتھ مل کے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ گجرانوالہ کے لیے ڈرائی بورڈ بھی جو ہے وہ آئے گا، کیونکہ گجرانوالہ کی انڈسٹریل ورتھ اتنی زیادہ ہے کہ مجھے کہ 18,000 ایس ایم ایز اور کاٹیج انڈسٹری جس شہر میں ہو، اور وہ پاکستان کے دوسرے نمبر پہ کاٹیج انڈسٹری اور ایس ایم ایز کے اعتبار پہ ہو، جو شہر انڈسٹریلائزیشن کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ ہو، جو 60-70 بلین کا ریونیو جو ہے وہ لوکل آر ٹی او جو ہے اس کو دیتا ہو، جو $2.5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہو، امپورٹ جو ہے سبسٹیٹیوٹ کی مد میں $3-4 ارب جو اس ملک کے خزانے کو فائدہ دے رہا ہو، تو اس کے لیے ڈرائی بورڈ کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے کنٹینرز جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ بس ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ نیشنلی یا انٹرنیشنلی اس بات کو باور نہیں کرا سکے۔ ابھی بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب بھی اسلام آباد میٹنگ میں جاتا ہوں تو وہ ہماری ایکسپو کی وجہ سے ہمیں سارے انویسٹرز بھی یاد رکھتے ہیں، سارے انویسٹر بھی یاد رکھتے ہیں۔ ان کو ایکسپو کی وجہ سے یہ پتہ لگا ہے کہ اس شہر کی ورتھ کتنی ہے۔ تو ابھی انہوں نے ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کا بھی ہم نے بھی تھوڑے دن
कोशिश करेंगे हम इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करते रहें और इंतज़ामिया के साथ मिल के जो भी बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसे इकदाम है वो कर सके। और मैं गुजारिश करूँगा कमिश्नर साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जो तकरीर है वो तो क्लोजिंग होगी। क्लोज करना चाहते हैं आपसे? नहीं, पहले तो आपने को बात करनी है, तो मुतालबात हैं वो बताइए। आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं? अपने हिस्सा है ये नेचुरल में, फिर अगर आपका ये मतलब है तो जी मैं गुजारिश करूँगा फॉर्मर प्रेसिडेंट मियां मसलिम साहब से। जी 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 हाँ जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारी रिक्वेस्ट पे तशरीफ लाए। एक बेहतरीन टीम है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। पहले भी जो लोग रहे उन्होंने अपना काम किया, लेकिन इन्होंने कमाल किया। मैं चाहता हूँ हाउसिंग के लिए क्लैपिंग। सर इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो पिछली हम अचीवमेंट्स हैं जो आपने भी देखी, इस 8 माह के अरसे में ये नई रजीम ने ये जो डेवलपमेंट्स की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, लेकिन ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बाकी है। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बताया, ड्राई पोर्ट में हमें खास आपसे मोहब्बत चाहिए, आपका ताउन चाहिए। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि मेन आज आप इंतज़ामिया से कि हमें ड्राई पोर्ट में पूरी सपोर्ट करें, और कोई शर पसंद वो किसी भी सूरत में हो, वो बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो कोई आके आपको हमें तकसीम करने की कोशिश करे, तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे अवॉइड ही करें। कुछ ऐसे लोग हैं आपसे कुछ खबर लेना चाहते हैं, हमसे कुछ लेना चाहते हैं, बस ये मेरी इल्तिजा है। तो बाकी मैं यही एक हाउस ओपन है, कोई अगर आपसे कोई बात करना चाहते हैं, कोई सवाल भी रिक्वेस्ट वो कर लें। जी वाइस प्रेसिडेंट साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब कमिश्नर साहब, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब, हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप चैम्बर तशरीफ़ लाए। और मैं ये अपने जो हमने डेवलपमेंट जो अपने चैम्बर के अंदर तब्दीली लाए हैं वो भी आपके सामने है। इसमें मैं वेलकम करता हूँ इनके अपने जो हमारे सीनियर्स हैं, चूँकि असल में जो अगर मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अगर किसी अदारे की तरक्की चाहते हैं, तो तमाम अफराद को एक पेज पे आना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैम्बर है उसके जो ऑफिस बेरर हैं और एग्जेक्टिव हैं और हमारे सीनियर्स हैं, फार्मर प्रेसिडेंट हैं, वो तमाम बिजनेस ग्रुप के मुताबिक एक पेज पे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं अपने फार्मर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पे आप, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों जो हैं साहिबान इस ज़िले के लिए एक गिफ्ट है, और जो आपके काम हो रहे हैं, आपकी मौजूदगी में, आपकी सरबराही में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो भी काबिल सताइश हैं। तो मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ये जो मोटरवे से उतरकर जो मोड़ इमनाबाद का अंडरपास है वो बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। लोगों को उधर से उतरकर बड़ी दूर से टर्न लेकर गुजरांवाला में आना पड़ता है। उसकी सफाई का मसला है या उसका जो भी मसले हैं, तो बराए मेहरबानी करके उसको फंक्शनल करवाया जाए, उससे बड़ी आसानी पैदा होगी। और दूसरे नंबर पे मैं एक और हालात बताते तो हम उस वक्त जब हमारी ख्वाहिश ये मुकम्मल हो जाती, लेकिन 80% इसके ऊपर काम हो गया कि मैं ये गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूँ अपने चैम्बर के मेंबरान को। हो सकता है कि हम कामों के लिए ये हो जाए कि जो टूल प्लाजा है वो एग्जेप्ट हो जाए। हमारी मीटिंग्स मुकम्मल हो चुकी हैं, एक आखिरी लास्ट मीटिंग रहती है, 20% काम रहता है। हो सकता है हमारा जो चैम्बर का जो मेंबर है वो उस टूल प्लाजे से एग्जेप्ट हो जाए, क्योंकि उसके लिए ये ज़रूरी था कि ये जो टूल प्लाजा है, टॉप प्लाजा है, ये बाउंड्री वाल पे बनना चाहिए था, जो कि सिर्फ मेरा ख्याल 8 से या 7 किलोमीटर के फासले पे है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि ये तकसीम कर दिया गया। गुजरांवाला कामों की एक ही है, इसको तकसीम करके ये हो गया। लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 27 तारीख के बाद हो सकता है कि हम जो है ना गुजरांवाला के जितने भी चैम्बर के मेंबर हैं उनके लिए ये हम सहूलत जो है ना हासिल कर सकें। शुक्रिया।
जी कमर दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे नज़दीक 3 मसाइल हैं जो मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं और दोनों की मौजूदगी में मैं फ़ायदा उठाऊँगा। एक तो गुजरांवाला शहर की जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें नक्शे की हमें प्रॉब्लम आ रही है, फैक्ट्रियाँ सील हो जाती हैं, फिर उसके बाद क्योंकि कोई फैक्ट्री 20 साल पुरानी है, कोई 30 साल पुरानी है, तो उसके लिए बराए मेहरबानी कोई हल निकाला जाए। और दूसरा जो हमारी पाकिस्तान सिविल एसोसिएशन की जगह थी एक एकड़, वो हमें बताए बगैर ट्रांसफ़र हो गई है पाम सिटी वालों के नाम पर। वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान सिविल वो हमारी इतलाह के बगैर, हमें मालूम होने के बगैर ही वो एक एकड़ जगह जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई है। नहीं, हम गए हैं, मीटिंग करते हैं। अच्छा, वो मिनिस्ट्री कॉमर्स ने ली है, वो बस उन्होंने ऐसे ही कोई हमें इसकी इतला नहीं है, वो हमारी जगह थी और वो उसके बाद आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, लेकिन वो मेरी वजह से ही सारा ये काम हो गया है। लेकिन वो हमारी तरफ से सुस्ती कर ले कि थोड़ा ये चले, हमारी तरफ से सुस्ती है, नहीं हमारी तरफ से सुस्ती है, लेकिन आपकी मेहरबानी है, इसलिए आप इसके ऊपर गौर करें और हमारा ये जो मसला इसको हल करें। इसके अब डॉक्यूमेंट चेयरमैन साहब ये हमारे पर्सनल सेक्रेटरी चेयरमैन ये आ जाएंगे, आप एक दो बता साथ देखें। और तीसरी मेरी गुजारिश ये है कि ये जो पुल उतरते हुए और चढ़ते हुए ना छोटा सा खड्डा होता है, उसको मरम्मत नहीं किया जाता, वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाता है, गाड़ी बढ़ता है, पंक्चर दोनों पुलों की होता है। ये पिंडी बाईपास वाले पुल में भी प्रॉब्लम है, उससे जहाँ से जाते हुए ना पहले 2 3 4 जगह पे पहले छोटे छोटे थे, अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये मेहरबानी है, मैंने क्योंकि जाना होता है ना मेरे लिए। थैंक यू। राम साहब मुझे इजाज़त है। अस्सलामुअलैकुम सर, डीसी साहब को पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा, पंजाब में पहले नंबर पे परफॉर्मेंस इनकी आई है, उसके लिए 2 सारा तालीम दिला रहा हूं। दूसरा डीसी साहब के साथ मैं वेस्ट मैनेजमेंट में डायरेक्टर भी हूं और मैं ये देख रहा हूं कि जो डीसी लगन और मेहनत से डीसी साहब ने गुजरांवाला शहर के सफाई और इंतजामात को टेकअप किया हुआ है, ये एक मसाली काम इन्होंने किया है। तो सर मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है, मैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग गुजरांवाला का सर प्रेसिडेंट हूँ बोर्ड का, डी बॉम का। तो मैं पहले भी आपके पास रिक्वेस्ट की है, वो जो जगह पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग की है उसके अंदर वो जो है वो महकमा फूड से सर जो है ना मिनिस्ट्री से ली हुई है। पहले 3 रुपए पर स्क्वायर फीट उसका किराया था, जो कि 80 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया गया है। वो सर ज़कात और उशर पे इदारा चलता है, तो उसके ऊपर मैंने पहले भी सर मैं आपके पास आया था कमिश्नर साहब के पास, उसका दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, सील कर दिया, आपने मेहरबानी की, आपने दरवाज़ा ओपन करवा दिया। उसके बाद लाहौर से वो मिनिस्टर हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी आए थे वहाँ पे, उन्होंने भी विजिट किया जी, राशिद साहब आए थे सर, तो उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने ये भी देखा कि जो मेरा काम वगैरह है जो हम कर रहे हैं, तो उसमें सर ज़रा मेहरबानी कर दें, अगर कोई हो सकती है तो उसका कोई मसला सर हल करवा दें। अब मेरा तो टेन्योर सर ख़त्म हो जाएगा बाय एंड ऑफ दिस ईयर, फरवरी 2026 तक है सर, तो लेकिन सर वो जो है ना वो काम सर आप मेहरबानी कर दें, अगर आपके हाथों से हो जाए तो ये सर बड़ी आपका शुक्रिया सर, मेहरबानी। सर सबने अपनी रिक्वेस्ट कर ली है। एक नंबर सोहेल साहब की रिक्वेस्ट जो है ना अभी याद आ गई, सुबह ये मेरे पास आए थे, ये हमारी इस्लामिक एसोसिएशन से हैं, तो हमारी इस्लामिक्स की काफ़ी शॉप्स जो बनी हुई हैं वो इधर जो हमारा कंगिया वाला बाईपास है वहाँ पे मार्केट है, तो इनके थोड़े से मसदे आते हैं, कंटेनर आते हैं और होते भी 2-4 हैं, तो उनको 1 घंटे का टाइम अनलोडिंग का मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे आने में बंद हो गया।
हुआ है, 1 घंटे का टाइम मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, चाहे 10 बजे के बाद हम फाइल आउट कर दें। जी गिल सर। जो थाना के इलेक्शन के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फौरन करवाए जाएँ, और पहली जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की, आसम लील साहब और आमिर रहमान साहब। हाँ, तो उसके लिए अगर आप इनिशिएटिव लें तो अब जिमखाना पुरसाने हाल है, हम चाहते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर बनाएं। जी बहुत शुक्रिया सर। और बस ठीक है। हाँ जी जी, बस लास्ट में अगर कोई सबसे पहले तो बड़ी वार्मली वेलकम। गुजरावाला में डिफरेंट चीज़ों पे तो काम हो रहा है, मगर स्पेशल बच्चों के लिए गुजरावाला में कोई ऐसा अदारा नहीं है। हमारे गुजरावाला में बहुत बड़ी तादाद है जो लाहौर जाती है। जी जी, और किसी को क्वेश्चन? जी ठीक हो गया। बना देते हैं लेकिन आप उसको टेकअप कर लीजिएगा, बना देती हैं लेकिन रजाक फिर आप वो कहते हैं बना देते हैं, उसको भी टेकअप आप कर लीजिएगा, लोग उसकी हिफाजत नहीं करते, उसको बड़ा मिसयूज होता है, फिर खराब हो जाता है। जी ठीक हो। जी लास्ट क्वेश्चन जी सर, इसका क्वेश्चन। मेहरबानी करें टेबल पे 3.5-4 यहाँ तक कोई इसमें यूटर्न एक यूटर्न मिल जाए बाईपास से लेके यूटर्न तक 3.5-4 किलोमीटर ठीक सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। with kind permission of Honorable Commissioner गुजरावाला डिवीजन सर नवीद अदर शराजी साहब, मैं प्रेसिडेंट साहब आपको और पूरी आपके जो एग्जेक्टिव कमेटी के मेम्बरान बैठे हुए हैं, मैं तहे दिल से मशहूर हूँ कि आज एक मरतबा फिर आपने हमें यहाँ पे आने का और अपने साथ नशिस्त करने का मौका फराहम किया है। अप्रिशिएट करूँगा, एक्नॉलेज करूँगा कि जितना माशाल्लाह एग्जेक्टिव लुक आपने अपने ऑफिस को, चैम्बर के जितने मेम्बरान हैं उनकी फैमिलीज़ के फैसिलिटेशन के लिए, और ख़ास तौर पे जो इस एग्जेक्टिव हॉल की आउटलुक को और जितना ऑफिस को हम विज़िट करके आ रहे हैं, जितना आपने इम्प्रूव किया है, आप माशाल्लाह सारे इसके दादुस्ताइश के आप मुस्तहिक़ हैं। मैं सारी गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स नो डाउट विदाउट एनी एग्जैजरेशन इज़ ऑन राइट ट्रैक अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने एक्सपो की बात की है, हर बंदा वो पूरे पाकिस्तान में जिसका कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ जो लिंकेज बनता है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ गुजरावाला के इस लेवल पे जाके गुजरावाला की जो कैपेसिटी है, जो एग्जिस्ट करती है जनरली, उसको वहाँ पे जाकर डेमोस्ट्रेट किया गया है। और इमेंस जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस एक्सपो ने जनरेट की हैं, जो कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कमिंग जो टाइम होगा उससे हम उसके बेनिफिशरी होंगे। बीइंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ ऑनरेबल कमिश्नर साहब,
जो डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से जो चीज़ें हो सकती हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई अगर उसका बेनिफिशरी है, तो वो हमारी ये बिजनेस कम्युनिटी है जिनके सामने आज हम बैठ के आपसे बातचीत कर रहे हैं। मैं सीधा कुछ चीज़ें यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। जिस तरह इस ADB में हमारी अदना सी काविश है, जो नंबर ऑफ ब्रिजेस जो कि पार्लियामेंटेरियंस के, जिसमें मैं कहूँगा कि आपके उनका बड़ा रोल है, उनकी बड़ी कोशिश है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी कैपेसिटी में अपना उसमें पार्ट ऐड किया है। नंबर ऑफ न्यू प्रोजेक्ट जिसमें ब्रिजेस हैं, आपका सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, आपका मेट्रो है, आपका इलेक्ट्रिक बसेज हैं, मोटरवे के साथ आपके न्यू लिंकेजेस हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर लगता है कि एक एज अ होल डिस्ट्रिक्ट के लिए चीज़ें हैं। नो डाउट उसका बेनिफिशरी डिस्ट्रिक्ट एज अ होल भी है, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई उसका बेनिफिशरी है तो वो आप सारे के सारे मेरे ये चैम्बर के मेंबरान और ताजर भाई हैं, जो कि एक्चुअल जो बेनिफिशरीज के ज़ुमरे में आते हैं। कि आपके यहाँ देखें, अगर रोड नेटवर्क होगा, शहर खूबसूरत होगा, आपकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, आपके पास ट्रैफिक के इशूज़ नहीं होंगे, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों का रुझान आपकी तरफ बनेगा। और जब रुझान बनेगा तो डेफिनेटली उतने ही बिजनेस के मौके आपके पास पैदा होंगे, और अल्टीमेट जो उसका बेनिफिशरी होंगे वो सारे के सारे आप लोग होंगे। एक चीज़ जो कि मैं, क्योंकि आपके साथ अब इस तरह का हमारा ताल्लुक़ है कि वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, एक टीम की तरह, विदाउट टेकिंग ऑफेंस, माइंड न कीजिएगा। आज की मीटिंग में मैं ऐसे थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ बड़े लेवल के मामला डिस्कस किए जाएंगे, और बिजनेस के लिए और चैम्बर के लिए ये छोटे छोटे इशूज़ हैं जो कि चैम्बर के मेंबरान, अल्लाह ताला ने इतनी उनको कैपेसिटी दी है कि एक गड्ढा फिल करना क्या चीज़ है, ठीक है ना, 100 हज़ारों गड्ढे फिल करा सकते हैं। आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। 2 वॉशरूम बनवाना क्या चीज़ है, मतलब एक सदका जारी है। इतना तो DC भी अपनी 2 लाख तनख्वाह में से जमा करके भी दे देता होता है, आप जाओ करो सवाब के लिए। तो आज थोड़े से बड़े इश्यूज आने चाहिए थे, जिनको सुन के हम भी आज बैठ के प्लान करते हैं, और हम कहते हैं कि बिल्कुल जी ड्राई पोर्ट होना चाहिए, एक एक्सपो सेंटर होना चाहिए, ये वो बता। तो ये आज थोड़े छोटे लेवल के इश्यूज डिस्कस किए गए हैं। मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हम एक फैमिली की तरह, कि हम एक दूसरे से बैठ के सीखते होते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज ऑन द राइट ट्रैक। हमें राइट ट्रैक पे रखने के लिए हमें इस तरह की चीज़ों को उजागर करना चाहिए। हमें एक दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें वर्ल्ड की जो कंपेटिटिवनेस है उससे सीखना चाहिए, पाकिस्तान के कंपेटिटिवनेस से सीखना चाहिए, पंजाब से सीखना चाहिए। और आज हम बैठ के वो चीज़ें बैठ के इधर डिस्कस करते हैं, और हम कहते हैं कि सर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाइए, ये बताएं, इसके लिए भी करें, इसके लिए भी करें, इसके लिए भी करें। ये सारे इशूज़ दिलो जान से हाजिर हैं। ये जो सबसे पहले एमनाबाद वाला इशू डिस्कस किया गया है, मैं गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर वासा के ट्रांसफार्मर का इशू था, मोटरों का इशू था, हमने इसको रिसेंटली विजिट नहीं किया, ये क्लियर है, इस वक्त ट्रैफिक इसमें थ्रू है। ये ऑलरेडी हम इस पर रिजॉल्व करा के इस पे एक ट्रांसफार्मर वासा का लगना था, नीचे मोटरों में बैरिंग टूटे हुए थे, वो मैंने सारे करा के इस वक्त क्लियर है। ये इस वक्त मामला है ही नहीं। अच्छा, जो बात मैप्स वाली जो बात हुई है, मैप्स का हमने किसी को भी, किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को मैप के ऊपर हमने शट डाउन नहीं किया हुआ। वो ऑनरेबल कमिश्नर साहब आपको डिटेल में आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। इट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन कि जो यूनिट आपका एज अ कमर्शियल एंटिटी के तौर पे चल रहा है, वो सरकार का हर जगह पे कानून है कि उसने वो फी पे करके अपने आप को कमर्शियल कराना है ताकि उसका स्टेटस कमर्शियल हो जाए। अदरवाइज कोई एक सिंगल यूनिट भी मैप के ऊपर नहीं शट डाउन किया हुआ, अगर कोई है तो मुझे फहरिस्त दे दें। हम ड्यूटी बाउंड हैं कि हम आपके मैप्स एज अर्ली एज पॉसिबल हम आपको क्लियर करते हैं। और इसके लिए भी हमने आपको, ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने बड़ी फेवर दी हुई है कि आपको टाइम दिया हुआ है कि आप इसका प्रोसेस इनिशिएट कर लें। हमने बिजनेसेस आपके ओपन किए हुए हैं। अगेंस्ट लॉ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके बिजनेस को किसी ने शट डाउन किया गया हो।
हमारी गुजारिश है कि देखें आप में से कोई बंदा आया हो, हमने उसको डिनाई किया, आप तशरीफ लाएं, सारा दिन ऑफिस में बैठते ही इसीलिए आपका जो जेन्युइन चीज़ है हम हाजिर हैं, हम उसको अकोमोडेट करेंगे आपको। आपने सिल्क एसोसिएशन वाली बात खुद ही आपने मान ली कि जनाब की तरफ से उसको थोड़ा सा फॉलो अप नहीं हो सका। मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा इसको फॉलो कर लें, आ जाएँ, बैठ कर देख लेते हैं। सर ये एक नक्शा है, मेरी फैक्ट्री है जरगुल के नाम पे, मुझे भी ये नोटिस उसने भेजा होगा, 5 साल हो गए फैक्ट्री चलती 50 साल से भी चल रही हो, कमर्शलाइजेशन तो आपने करा लिया, है, ये सिर्फ नक्शे का है। आपका नक्शा अप्रूव्ड है, हाँ मैं जमा कराया हुआ वो तो रस्मन सारों को क्या होगा, आपको भी आ गया। है। वो एक वाला वो आया है। आप उनको बता देना कि ये मसला है, पुलों के गड्ढे बढ़वा देते हैं, कोई मसला नहीं है, एक्नॉलेज हुआ जी, बड़े ग्राहक होंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का जो इशू था उसका रेंट वाला वो मैं देख लेता हूँ, डिटेल आप उसकी दे दें, वो एक डोमेस्टिक इशू है, हम इंशाल्लाह उसको कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कंगनी वाला चौक पे आपने जनाब ने रिक्वेस्ट की थी कि उसकी टाइमिंग बढ़वा दें 1 घंटा, आप तशरीफ लें, आज भी आपके कुछ ताजर भाई आए हुए थे और मैंने CTO साहब को भेजा था, तो आपका भी हम उधर अगर होने वाली चीज़ है तो आपका इंशाल्लाह हम करा देते हैं। जिम खाना के इलेक्शंस के ऊपर बिल्कुल ड्यू है, कमिश्नर साहब से भी इंशाल्लाह हम गाइडेंस लेके इसके ऊपर हम कराते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। स्पेशल एजुकेशन वाला कमिश्नर साहब आपको बताएंगे, वॉशरूम्स भी हम देख के जनाब को बनवा देते हैं, और ख्याली यू टर्न वाला कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। तो बड़े मसले आज हमने तो आपको जगह भी दिखा दी है, आपके पार्ट से है, या तो देखें हमारी तरफ से कोई इशू आ रहा हो कि हमने कहा कि नहीं हम थोड़ा सा लैसोलाल से काम ले रहे हैं, हमने तो जनाब को जगह भी दिखा दी, सारा कुछ करा दिया, आए बिस्मिल्लाह करें बैठे। तो इसलिए अगेन नहीं देखें, हम चाहते हैं कमिश्नर साहब का जितने वो मुतहर्रिक हैं, हम चाहते हैं कि ये पेटी इशूज तो बिल्कुल, ये तो मतलब वो कि 2 गड्ढे 1 वॉशरूम, चलें दोबारा सोच लीजिएगा, हम दोबारा आके निश्चित कर लेंगे, तो बड़ा सोचें, हम चैम्बर एक बड़ा फोरम है, इसको बड़ा लेके जाएं, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम वक्त आपके साथ खड़ी, और इंशाल्लाह मिल के हमने इस शहर का एक ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करना है और उसको इंशाल्लाह प्रमोट करना है। सदर साहब अगेन थैंक यू, और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आपकी पूरी काबीना की एफर्ट्स को, बाकी कमिश्नर साहब की गाइडेंस में एडमिनिस्ट्रेशन हम वक्त आपके लिए हाजिर है, आप 1 कदम बढ़ाने के लिए कहेंगे इंशाल्लाह 10 कदम हम आपके साथ हम खड़े होंगे। जी डिप्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेजर मनसूबों की बात की है, हम आपको इंशाल्लाह चैम्बर में भी हमारा भी तामन होगा आपके साथ इंशाल्लाह। तो सर ये मेजर है ना 3-4 हमारे मेजर मनसूबा जाते हैं, जो बड़े मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है, मेडिकल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेज तो है ही नहीं, बड़ा दोनों साइडों में सारे हॉस्पिटल हो गए, तो उसमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत, स्पोर्ट कम्प्लेक्स के लिए बच्चों के लिए स्पोर्ट की ज़रूरत है, स्टेडियम एक 2 बनने हैं, और नशे के आगे जो बच्चे उनको इस तरह ट्रांसफ़र किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट करने से पहले मैं सिर्फ एक आध मिनट लूँगा। तो मेरा ज़हन ये था कि मैं जब हाउस ओपन करूँगा तो चीज़ें जो है ना वो काफ़ी वो जो निकलेंगी, चलिए माशाल्लाह आपने जो भी मुतालबात थे तो पूरा कर दिया। वैसे ये जो वॉशरूम वाला मामला है ना, ये आप मुझे भी कहते तो मैं उसको करवा ही देता, आपको मेरी आदत का पता है तो ये छोटा मोटा मामला जो ना, तो उसमें गुजारिश ये है सर कि एक तो हमारा जो मेजर काम है, गुजरांवाला को ड्राई पोर्ट चाहिए, ये हमारा मेजर काम है, 5-6 हज़ार कंटेनर यहाँ पे आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम इस शहर को जो करने वाला है वो बिजनेस कम्युनिटी का और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो है हमारा मेटल प्रोसेसिंग जोन का। मेटल प्रोसेसिंग जोन एक ऐसा मंसूबा होगा जिससे हमारा एनवायरनमेंट का मसला भी जो हर साल हमें होता है वो भी हमारा हल हो जाएगा, हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो एक जगह पे भी चली जाएगी। अगर गुजरांवाला को मेटल प्रोसेसिंग जोन जो है
آپ کے تعاون سے جو ہے وہ مل جائے تو یہ ہمارے شہر کی اکانومی کے لیے، یہاں کی ایکسپورٹ کے لیے، یہاں کے انوائرمنٹ کے لیے یہ گیم چینجر ثابت ہوگا، اور اس شہر کے لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بھی یہ گیم چینجر منصوبہ ہوگا۔ اس کو، ان منصوبوں کو اگر ہم پرائرٹیز پہ رکھ کے آپ کے تعاون سے ہم کر لیں تو باقی ایکسپو سینٹر کا جو ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، تو یہ 2-3 جو منصوبے ہیں ان کو آپ کے تعاون سے پایا تکمیل تک پہنچا دیں تو یہ ہمارے شہر کی اکانومی کے لیے، بزنس کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ تو میں درخواست کروں گا آنریبل کمشنر صاحب سے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے وہ انسان ہی ہے۔ اس کا اپنی یہ چیمبر کے اندر تھوڑی سی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا، وہ شام سے ایک وفد آیا۔ اس وقت جو مسجد بنو امیہ تھی دمشق میں، اس طرف مسجد میں جواہرات لگے ہوئے تھے چھت کے اوپر۔ آپ کیونکہ جو اموی خلفاء چل رہے تھے ان میں بہت نیک تھے، آپ نے تمام تعیش کی چیزیں تھیں جو خلفاء کے استعمال میں تھی، اس وقت کے جو حکمران تھے، گورنرز تھے، وہ سارے لے کے بیت المال میں جمع کروا دیے۔ آپ کو پتہ تھا ادھر بھی جواہرات لگے ہوئے ہیں، آپ نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد سے جواہرات اتار کے وہ بھی جو ہے وہ بیت المال میں جمع کر دیے جائیں۔ ان دنوں ایک وفد آیا ہوا تھا روم سے، کرسچن کا، تو یہ وہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ یہ کیا وہ ایک نئی قوم آئی ہے جو اتنی جلدی اتنا انہوں نے اقتدار حاصل کر لیا ہے، مختلف ملکوں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور تو جب انہوں نے مسجد بنو امیہ کا وزٹ کیا تو چھت پہ جواہرات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ان کا یہ جو یہ طرز ہے نا تعمیرات کا، یہ بتاتا ہے کہ یہ مٹنے والی قوم نہیں ہے، یہ رہنے والی قوم ہے۔ جب آپ کے نوٹس میں یہ آیا تو آپ نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ آپ نے کہا جو چیز مسلمانوں کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے وہ رہنی چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے اپنا آفس بنایا ہے یا کمیٹی روم بنایا ہے، یہ چیزیں یہ آپ کے چیمبر کی عظمت کو شو کرتے ہیں، اور میں آلویز کہتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہ چیز نفاست اور آپ کے اس کو ظاہر کریں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں جو بیٹھتے ہیں وہ اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں۔ ٹوٹی ہوئی کرسی ہوں گی تو وہ کیا ظاہر کرے گا؟ کوئی اچھا ہے آپ کی ڈیولپمنٹ، جس طرح آپ نے نوید کا بتایا ہے، یا ہمارے آفسیز ہیں، اچھی آفسیز ہونے چاہیے، اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا آپ نے دیکھا کہ ٹال کی جب بات کی میرے بھائی نے تو کسی نے کوئی تالی نہیں لگائی۔ آپ نے شاید محسوس کیا، میں نے محسوس کیا یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ جو کموکی کا ٹال جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں چیمبر کے لوگوں کے لیے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، کسی نے کوئی تالی نہیں لگائی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ 50 ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ گجرانوالہ پورے شہر کے لیے ختم ہونے جا رہا ہے تو پھر تالیاں بج رہی تھیں۔ ایک اور چیز ابھی ٹیکسز کی بات ہو رہی تھی، تو الویز یہ سننے میں آتا ہے کہ جی سرکاری ملازم جو ہیں وہ ہمارے ٹیکسوں سے بنتے ہیں۔ میڈیا پہ بڑا اس کا شور و غوغا ہے، بڑا چرچا ہے۔ نوید کا بھی لگ بھگ میرا جتنا ہی ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ 1,71,000 میری تنخواہ سے میرا ٹیکس کٹتا ہے ہر مہینے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ کیوں کٹتا ہے۔ بس کٹتا ہے، گورنمنٹ کاٹ رہی ہے، اس کے اگینسٹ جو مجھے گورنمنٹ دے رہی ہے یہ کٹتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ٹیکس، فی، لیویز دینے کی عادت ڈالیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیے جتنے میرے صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کا آج ان کے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے کون ہے؟
कल अगर किसी की एक पावर लूम थी आज 2 हैं, कल 2 थी आज 4 हैं। अल्लाह ताला का करम होता है, आप उसी में से कमा के देते हैं, उसी में से ज़कात देते हैं, उसी में से उशर देते हैं, उसी में से गवर्नमेंट के टैक्सेस देते हैं। तो ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, आप देते जाते हैं और बरकत डलती जाती है। लिहाजा इस चीज़ों पे, टैक्सेस पे, फ़ी पे, लेवीज़ पे ये कभी एतराज़ ना किया करें। ये पूरी दुनिया का ये सिस्टम है। 35% 40% टैक्स गवर्नमेंट जो है वो जूँ आप ऊपर जाते जाते हैं स्लैब बढ़ती जाती है। कई स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप 30-70 पे आ जाते हैं, 70% टैक्स निकल जाता है, तो वो लोग बिलियनियर हैं। तो इसलिए ये टैक्स और ये लेवीज और ये फ़ी और ये हमारा गवर्नमेंट बल्दिया टैक्स काट रही है या मैप फीस मांग रही है या कमर्शलाइजेशन है, ये चीज़ें गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये गवर्नमेंट टैक्सेस के ऊपर ही चलती है। जैसा मैं हैं, नवीद हैं, आप सारे हैं, हमारे टैक्स से गवर्नमेंट ने चलना है ना। छोटी छोटी सी बातें हुई हैं। मैं स्पेशल एजुकेशन से ही आगाज़ करता हूँ। मैंने कई दफ़ा कहा है, मेरे पास राना साहब भी आते हैं, मेरे पास मेरे दोस्त भी आते हैं, तो मैं इनको यही कहता हूँ आप जो सोचते हैं हमने वो काम कर लिया होता है। DPS में आपका जाने का इत्तेफाक होगा तो आपने जाके वो विज़िट करना है। स्पेशल एजुकेशन के सेक्रेटरी आए थे, उन्होंने कहा था हमारे पास कोई अच्छा स्कूल नहीं है, किराए की बिल्डिंग्स में हम हैं, तो हमें कोई जगह मिल जाए तो हम स्कीम अप्रूव करवा लेंगे। DPS में से ये अनप्रेसिडेंटल है, ये होना नहीं था। मैंने 12 कनाल की जगह DPS में स्पेशल स्कूल के बच्चों को दी, उनका केस अप्रूव कराया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, वहाँ स्कीम अप्रूव हो गई है, बाउंड्री वाल बन गई है, जो ग्राउंड था फाउंडेशन वो कंप्लीट हो गई है, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बनने जा रहा है। 1 साल के अंदर 12 कनाल में बेहतरीन इंस्टीट्यूशन बन जाएगा आपके शहर के अंदर ही। DPS के बिल्कुल साथ जो रेलवे ट्रैक है उस तरफ को आप ट्रैक जो फाटक है क्रॉस करके टूवर्ड GT रोड आए तो उसके ऊपर वो सेंटर बनना है। आपने विजिट ज़रूर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेंटर हमारे पास बनने जा रहा है। कामुकी का आपने अंडरपास का कहा, जब मैं आया था तो ये हमारा जो अंडरपास था ये सियालकोटी दरवाजे के नीचे ये भी बंद पड़ा हुआ था, इधर कोई गुजर नहीं सकता था। जो एडिक्ट लोग थे वो सारा दिन अंदर बैठे रहते थे, गंदगी थी, उसको बेहतरीन करके तो अब आपने अगर गुजर हुआ है तो वो अब हमारा आमदोरफ्त के लिए अब वो इस्तेमाल हो रहा है, बेहतरीन हो गया है। दूसरा जो आपने वो इसका कहा है कि आप बेनज़ीर इंटर चौक से नीचे उतरते हैं तो जो अंडरपास है उसको मैंने नवीद को कहा था कि इसको इस ADP में रख के एक तो उसकी छतों के ऊपर लाइटें लगाएं, दूसरा जो वॉल्स हैं उधर खूबसूरत पेंटिंग्स करवाएं, और इधर जो पानी बारिशों की दिनों में खड़ा हो जाता है उसका सीवरेज का बेहतरीन इंतजाम करें, ड्रेन का, कि पानी वहाँ से ड्रेन हो जाए। इशू ये है कि 2-3 दफ़ा वहाँ काम हुआ है और तीनों दफ़ा हो सकता है हमारे चौकीदार की मिली भगत से वो चीज़ें चोरी, मोटर चोरी हो गई, जो सोलर का सिस्टम हमने लगाया वो चोरी हो गया, तो वो सारी चीज़ें चोरी हो गई थी। इवन बिजली की जो वायर्स अंदर डाली हुई थी वो भी चोरी हो गई थी। अब हमने दोबारा उसको टेकअप किया है, इस्तेमाल के काबिल है। सिर्फ 1-2 दिन जब बारिश होती है तो तब इस्तेमाल के लिए नहीं रहता। और माजरत के साथ जो साइड में जो 1-2 यूनिट लगे हुए हैं उन्होंने भी अपनी जो है पानी वो उधर अंडरपास में फेंकते हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन इंशाल्लाह ये आप देखेंगे कि इस जो ADP का हमारा ये स्टार्ट हो चुका है ईयर, इसमें इंशाल्लाह 1 महीने 1.5 महीने तक आपको वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह नज़र आएगा। U-टर्न की आपने बात की, देखिए अगर आपने बाहर माशाल्लाह सारे ही आप उस कैपेसिटी में हैं, आपने साथ में ही बाहर का विज़िट किया होगा, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से पहले U-टर्न किसी भी इशारा के ऊपर नहीं होता, किसी जगह नहीं होता। हम लोग उसका उलट लेते हैं कि हम जो है वो रॉन्ग साइड से आते हैं, वरना वहाँ तो ये तसव्वुर भी नहीं है रॉन्ग साइड से आने का ना। तो 2 किलोमीटर है सो, बट किसी ना किसी वजह से उन्होंने वो अगर 2 किलोमीटर के ऊपर काट रखा है तो ट्रैफिक के उस जो उन्होंने जो भी इंजीनियरिंग की थी उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने U-टर्न इतने फासले पे रखा है।
तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने ये रखा है हम दरमियान में एक कट लगाएंगे, फिर मेरे भाई कहेंगे एक और लगाएं, फिर मेरे भाई ये कहेंगे और लगाएं, फिर मेरा उधर है तो मैं कहूँगा मेरे सामने भी हो, तो ये अगर उन्होंने किया है तो किसी ना किसी वजह से किया होगा। लेकिन इवन देन मैं नवीद साहब को कहता हूँ कि जो इन्होंने ये कहा है उसको चेक कर ले, अगर उधर कोई ट्रैफिक हैजर्ड नहीं बन रही, कोई इशू नहीं है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको ये इंशाल्लाह देख लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं कोई मैंने अब नवीद साहब को कहा है ना, इसको देख लेते हैं। तो बात करें तो शजर को हमारा रोड है ना, वो मुझे पता है, उन्होंने देखी मैं बताता हूँ, वो रोड जो है ना बेसिकली उन्होंने बनाई है टॉल की रोड है, वो हमने बनाई है पीपीपी मॉड में गए हैं। अब पीपीपी मॉड वालों ने इतने अरसे में उससे पैसे कमाने हैं, हम कह तो सकते हैं उन्हें, लेकिन हम फोर्सफुली उन्हें ये नहीं कह सकते कि आप ये करें। प्राइवेट कंपनी अगर लाइक आप होते, आपने ये रोड बनाई है तो हम जगह जगह कट लगा देते, आप कैसे बर्दाश्त करते हैं। लेकिन फिर भी इवन देन नवीद उनसे इंशाल्लाह ये कहेंगे। जो आपने ये लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो एक दो मैंने आपको बातें बताई थी कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सफ़र ये डेवलपमेंट का स्टार्ट हुआ था लिंक से, मेरे भाई उस वक्त तशरीफ़ लाए थे, हमने इकट्ठी मीटिंग्स की थी, तो लिंक से जो स्टार्ट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जितने प्रोजेक्ट गुजरांवाला में आए हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी इंटरिम, उसके बाद जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जब बजट का सेशन चल रहा था तो आपको अगर किसी ने वो सेशन सुना है तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने कोई 4 दफ़ा कहा था कि गुजरांवाले का जो मेट्रो है वो मैं बनाने जा रही हूँ, लगाइए जी गुजरांवाला का मेट्रो, अगर किसी ने सुना है वो स्पीच। तो 3 मोटरवे डिस्कस हो रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले गुजरांवाला का मोटरवे बनेगा और इसके ऊपर इलेक्ट्रिक ट्राम चलेगी, जो किसी दौर में आज से कुछ 100 साल पहले यहाँ चलती होती थी। तो एक तो ये रिवाइवल भी है और दूसरा ये है कि ये शहर की खूबसूरती के लिए है, इंटीग्रेटेड होगी वो, तो इंशाल्लाह ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। और उसके रिलेटेड या उससे लिंक करता जो हमारी स्पीडो बसेस आ रही हैं, जो उसको कनेक्ट करेंगी, जो हमारी मेट्रो को डिफरेंट हमारे सिटी के एरियाज़ को, तो वो हमारे पास तकरीबन 90 के करीब आ रही हैं। इंशाल्लाह वो बसें हमारे जो हैं वो सितंबर के एंड तक हमारे पास इंशाल्लाह आनी शुरू हो जाएंगी। अब वो बसेस जो हैं हमने उसके 6 रूट बनाए हैं बाईपास के ऊपर। टोटल ये जो हमारा 27 किलोमीटर का बाईपास है, इसके ऊपर वो हमारी बसेस चलेगी, प्लस 6 रूट जो हमारे शहर के अंदर बाईपास से आ रहे हैं उनके ऊपर ये चलेगी। हमने लते वाला बराइज तक का ये लिंक दिया था, हो सकता है कि ये आगे चला जाए किला दीदार सिंह तक। किले से ये हमारी बस आएगी बाईपास तक, बाईपास से हमारी बस आएगी जीटी रोड तक, जहाँ हमारे स्टेशन होंगे और लोग उस पर बैठ के तो हमारे लोग ट्रैवल करेंगे। एक आपका सिग्नल फ्री जो हमारा बन रहा है, सेकंड जो हमारी 90 बसेस आ रही हैं जो पूरे शहर को कनेक्ट करेंगी मेट्रो के साथ, और तीसरा जो हमारा मेट्रो आ रहा है। ये 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो गुजरांवाला के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन प्रोजेक्ट को आने के बाद देखिएगा कि हमारा गुजरांवाला का नक्शा ही चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। लेटेस्ट शहरों में हमारा शुमार होगा। मेरी सारे उसके पीछे आपसे एक दरख्वास्त होगी कि माशाल्लाह 500, 550, 600 जितने भी आपके मेंबर हैं, ये उन तक आवाज़ पहुँचाइए कि ये शहर हमारा है। गवर्नमेंट अगर एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो हमने उसको कामयाब करना है। देखिए ड्रेन का सिस्टम वसा के लिए हमारे पास तकरीबन 5 बिलियन के करीब गवर्नमेंट हमें देने जा रही है। इसके बाद हमारा टोटल जो सिस्टम है वसा का वो अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस अपग्रेडेड सिस्टम में डेली बेसिस पे अपनी दुकान का, अपने घर का या अपनी फैक्ट्री का गंद फेंकेंगे तो फिर क्या होगा? फिर चौक होगा, फिर पानी खड़ा होगा, फिर हमें कंप्लेंट करेंगे कि इतना पानी हमारे दरवाजे, फैक्ट्री और हमारे बाज़ार में खड़ा होता है। क्यों ना खड़ा हो? सिंपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ गुजरात की। गुजरात में
हर बारिश के बाद 2 दिन पानी खड़ा रहता था, 24 घंटे और 48 घंटे हमने वो एस्टिमेट रखा हुआ था कि इसमें पानी निकलेगा। इस दफ़ा हमने जो हमारी वहाँ वेस्ट कंपनी है, सॉलिड वेस्ट कंपनी, उनके साथ मिलके हमने डिसल्टिंग, कंटिन्यूसली डिसल्टिंग करवाई है। अप्रिशिएट मैं करता हूँ हमारे अपनी डिप्टी कमिश्नर नवीद को कि ये वहाँ जाके बैठ गए हैं, इन्होंने कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को जो है वो मॉनिटर किया है और विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी आज गुजरात में जितनी ये हमारा जो आपको पता है इस दफ़ा बड़ा हार्श सीज़न आया है मानसून का, हमारे वहाँ अब जो एस्टीमेट है वो 4 से 5 घंटे है। जो 48 घंटों में पानी निकलता था वो अब 4 घंटों में गुजरात का निकल रहा है। और ये पीछे साल हर साल से यही हो रहा था। हुआ क्या है कि लोगों को नो डाउट की सख्ती है, हमने दुकानें सील की हैं, हमने उनको जुर्माने किए हैं, उनको हमने इस्तगासे दिए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस बात पे ले आए हैं कि गंद को आपने सीवर में नहीं फेंकना, ड्रेन में नहीं फेंकना। उससे 48 घंटे का जो था एक टाइम वो 4 घंटे में आ गया है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारे सॉलिड वेस्ट कंपनी के भी चट्टा साहब बैठे हुए हैं, मेहनती है, इनकी टीम मेहनती है, जान लड़ाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते अगर आप लोग इनके साथ नहीं मिलेंगे। हमारा शहर है, हम इनसे साथ पूरा तामन करें कि हमने इस शहर को साफ रखना है। और ये जब आपके इस फोरम से ये आवाज़ जाएगी तो वो बहुत बेहतर तरीके से आवाज़ जाएगी। पूरे पंजाब में हमारा एनक्रोचमेंट का जो है ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे गुजरावाला में आज भी जारी है। आपने अगर लदे वाला वड़ाइश से गुजरे होंगे तो पीछे से हाफजाबाद रोड डबल आ रही थी, आगे जाके सिंगल हो जाती थी, चौक हो जाती थी, आपने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे उस एरिया को क्लियर कर दिया है, अब वहाँ भी डबल रोड ही गुजरेगी। आज भी ये किसी जगह ये मेरा ख्याल है कच्चा खतोमंड पे आज भी ऑपरेशन हो रहा है, उसको भी हम बेहतर करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक इंतज़ामिया का तल्लक है, एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लक है, अब यकीन करें जिधर से अभी मैं डस्के से आ रहा था, एक एक पॉइंट मैंने विज़िट किया है जहाँ मुझे पानी खड़ा नज़र आया है, जहाँ मुझे ये थोड़ा सा वेस्ट नज़र आया है, जो जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है मैंने सारा विज़िट करके आपके पास आया हूँ, एक एक चीज़ का मतलब कह के आया हूँ, टाइम बता के आया हूँ कि इतने दिन में ये ठीक होनी चाहिए। लेकिन फिर मैं उसी बात में आऊँगा कि चीज़ें ठीक नहीं हो सकती जब तक आप नहीं चलेंगे। आपने ओनरशिप, मैं बार बार आपको कहता हूँ, पहली दफ़ा भी मैं आपके पास आया था, मैंने यही कहा था कि आप ओनरशिप लें कि मेरा शहर है, मेरी गली है, मेरा बाज़ार है, मेरे घर से निकल आए कि मेरा घर है, मैंने हर गंद बाहर फेंकना है, उससे निकल आए काइंडली। जब आप उससे निकल आएंगे, देखिए हमारे कुछ शहर गली है कैसे चमकते हैं, क्योंकि ये लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग तो लगे हुए हैं, लेकिन आप साथ नहीं देंगे। 100 बंदा सफाई करने वाला हो, एक गंद डालने वाला होना, वो भारी होगा, क्योंकि वो करते जाएंगे, वो फेंकता जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज इस फोरम पे आज हम बैठ के ये अहद करें, ये तहैया करें कि मेरा शहर है, हमने इसको नीट करना है, हमने कोई वेस्ट बाहर नहीं फेंकना। जगह जगह जीटी रोड के ऊपर हमने देखे वो बिल लगा दिए हैं, वो छोटे छोटे कंटेनर रख दिए हैं, लेकिन अभी आप मेरे साथ जाएँ, सारे कंटेनर खाली होंगे, कोई जहमत ही नहीं करता कि उसके अंदर डालने की। और ये कर कौन रही है? जिनका निसब ईमान सफाई है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि ये हमने करना है। दूसरा जो आपने कहा था, यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, 2nd फ्लोर की छत डाल रही है। कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स जो है, आप राना साहब को आपने इनको विजिट कराना है, जो हमारा सियालकोट ये शिवपुरा रोड है, हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स कंप्लीट होके अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट दोनों बन गए हैं, आपने विजिट करने हैं। तीसरा जो मेरे ऑफिस के साथ वाला है, उसकी रेनोवेशन भी हो रही है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस जहाँ सेफ सिटी बना है उसके आगे बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इंशाल्लाह वो भी मेरा ख्याल 6-8 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं रहेगी जो या ख्वाब नहीं रहेगा कि ये होना चाहिए और वो गुजरांवाला में ना हुआ हो, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी ऑनरेबल कमिश्नर साहब, ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कमिश्नर साहब ने अभी फरमाया है कि जब तक सोच नहीं बदलेगी
तब तक हालात नहीं बदलेंगे। तो आपको, हमें बिजनेस कम्युनिटी को मतलब हम ऐसे तबके से हैं कि हमें इसकी ऑनरशिप इस शहर की लेंगे तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ पाएंगी। सबसे पहले हमने अपनी सोच को बदलना है, मेरे से आप पे जाना है, वाहद से जुज़ पे जाना है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। इससे जब आप पे जाएंगे, इससे सिर्फ शहर नहीं बदलेगा, ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी जो है वो इससे बदल जाती है। जब इंसान दुनिया में, वो कभी भी इंसान नाकाम नहीं होता जिसको अल्लाह पाक बांटने की तौफीक अता फरमाए, वो खैर हो, वो इज़्ज़त हो, वो पावर हो, जो बांटने गिविंग एंड पे होता है, अल्लाह पाक उसे कभी भी जो है वो कमज़ोर नहीं करते, उसको कभी भी जो है वो शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल कमिश्नर साहब का, डीसी साहब का, कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मेरी जो मेजर ड्राई पोर्ट वालों में 5 मिनट आपसे टाइम चाहिए तो उसके लिए एक छोटी सी वर्किंग हमने की हुई है, नहीं